Now here is the third and fourth stanza for you. Before today, we have studied two stanza, the childhood. Here, a man, the poet, asking himself a lot of questions, and he was thinking about his lost childhood. मतलब ये कि कभी अपने आप से बहुत सारे सवाल कर रहा है और अपने खोए हुए बचपन को तलाश रहा है. He just trying to find out the way when his childhood has lost him, and when he become younger and younger. According to poet and myself, there is no difference line between childhood and younger age, because we can't confirm it with any date, and we can say that now childhood has gone away. हम एक तारीख के साथ तय नहीं कर सकते कि बचपन चला गया. बोल रहा हूँ तो शब्दों को पकड़िए, समझ में यदि आ रहा है तो इसका मतलब ये कि बहुत पॉजिटिव संकेत है. यदि किसी को पूरा का पूरा समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सोच लो कि सदी की बहुत बड़ी घटना घट गई आपके सामने. क्योंकि पूरा समझ में आ रहा है तो इसका मतलब थोड़े समय के बाद आप मेरे हिसाब से बोल भी सकते हो. और इंग्लिश का मतलब इसीलिए है कि बोलना आ जाए. भले नौकरी लगे नहीं लगे, इंग्लिश बोलने आए तो वैसे 25-25 हजार रुपये वैसे कमा खाओगे. किसी अच्छी होटल में वेटर बनोगे तो भी कहा तो दोबारा निकल जाएगा. ठीक है ना. सो हियर इज थर्ड स्टांजा फॉर यू. इन फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में क्या कहता है कवि, कब कहता है कि क्या 10 साल से 11 साल की उम्र में जब प्रवेश किया तब उसका क्या बचपन खत्म हो गया. ही इज फिक्सिंग ए लाइन 10 ईयर. In another stanza, he is saying that as you see, the adults, which they are not, जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं है. यही कह रहा हूँ कि जो कहते हैं कि जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं पर वैसा ठीक नहीं करते. There is a lot of differences between doing and saying by the adults. What is the difference between doing and saying? Doing, it means you are following. You are doing such type of work which you are saying. तुम वो काम कर रहे हो जो तुम कह रहे हो. Is it clear? इन बातों को थोड़ा क्या करना समझिए. से here is third stanza for you, and very short stanza but a very beautiful. This is the mind blowing stanza of only 4th line. What is poet saying here? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? Here is the third question for poet himself. He is saying himself, he is asking himself, when did my childhood go? He just want to find out. When did my childhood go? कि मेरा बचपन कहाँ गया. तीसरा सवाल वो अपने आप से पूछ रहा है. Was it when I find my mind was really mine? क्या कह रहा है वो? Was it when I found my mind was really mine? What's the meaning of that line? क्या कह रहा है हिंदी में समझिए. Was it when I found my mind was really mine? वो कह रहा है कि क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा अपना है. तुम सोचो बड़ी अजीब बात है. लेट मेक डिफरेंसेस. ए चाइल्ड, हिज एज एंड कंपेरिजन विद द एडल्ट्स. इन योर एज यू नो दैट योर माइंड इज यूर, बिकॉज यू थिंक्स योर सेल्फ. यू डू एज यू थिंक. There is no differences between saying and doing in you. Why? Because now you can control your mind. In childhood, there is no any thought of any children. बचपन में क्या होता है? बच्चों की अपनी सोच होती है क्या? There is no thought. There is no individual thought. A children think as their parents think, as their friends think,
एज द टीचर थिंक्स। एक बच्चा कैसे सोचता है, छोटा बच्चा, वो अपनी तरफ से कोई फिलोसोफर नहीं होता है, वो वही सोचता है जो कि उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट होता है। ही बिलीव ऑन टीचर, हिज थॉट इज नॉट हिज, बट हिज थॉट इज बिलोंगिंग टू द टीचर। एक children believes their parents and their parents reflect in his thought. He or she has no any different thought, because in childhood there is no mind. There is mind, but there is no individual thought. बचपन में किसी बालक की अपनी कोई व्यक्तिगत सोच नहीं होती। कारण क्या है कि उसकी व्यक्तिगत सोच डेवलप ही नहीं हुई है। अब यहाँ राइटर क्या कह रहा है, देखिए, was it when I found my mind was really mind? really किसको नहीं मिला है? really mind? When a child began to think that his mind is developing, बच्चा जब सोचने लगे कि उसका क्या हो रहा है, माइंड डेवलप होने लगा है। So the poet says that when he began to think about this matter, that he or she has a now individual mind, then he thinks that he become now younger. Now he has crossed the age which we can say childhood. To use whichever way I choose. What is he saying? Now I can use my mind, which I think. I choose my mind, what I want to do. अर्थात कि वो अपने दिमाग से वो काम करना चाहता है, क्योंकि अब उसका अपने पास दिमाग है। इसलिए कवि कह रहा है कि क्या उस समय क्या वो जवान हो गया, क्या उस समय उसने बचपन को छोड़ दिया, जब उसे लगता है कि उसकी अपनी एक व्यक्तिगत सोच है और वो जो सोचता है वो कर सकता है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। नाउ इन दिस फर्स्ट टाइम ही इज थिंकिंग एंड हिज थॉट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इन चाइल्डहुड ही वॉज थिंकिंग like his mother, like his father, like his friends, like his teacher. But now his thoughts become individual. अब उसकी सोच क्या होगी है, बिल्कुल क्या होगी है, अलग होगी है। Producing thoughts that were not those of other people. Now he is thinking himself. पहले उसमें दूसरे लोग सोचते थे, उसकी अपनी सोच नहीं थी। If we say any children, let's say twinkle twinkle little star, he just start to repeat, because twinkle twinkle little star is not his thought. It was the reflection of the other thoughts. क्योंकि वो यदि बोलता है twinkle twinkle little star तो इसकी थॉट नहीं है। क्यों? उसे इसका मतलब ही पता नहीं है। He is only repeating the letter. He can sing it very loudly. Clear? So in this first time, when he thinks that his thought were only his now, he is not thinking as other people. Now producing thoughts that were not the other people. Now he was thinking individually, but my own and mine alone was that then. Now the poet says when he thinks that now he is thinking on his way, वो अपने तरीके से सोच रहा है। अब इस रास्ते का वो एक अलग पथिक है, राही है। Now he can choose the way on his side. अब उसे पता है कि वो रास्ता चुन सकता है, and he know that he has to walk on the way he choose. अब उसे उस रास्ते पे चलना है, जिस रास्ते को उसने चुना है उस पे चलना है। पहले रास्ते भी किसी और के हुआ करते थे,
और सहारा भी किसी और का होता था, उंगली पकड़ के तो वो चलता था। दैट वॉज नॉट हिज डिसीजन, वो निर्णय उसके नहीं थे। अब वो क्या निर्णय उसका है। नाउ देखिए ये कमाल की लाइन है, माइंड ब्लोइंग लाइन्स। Where did my childhood go? It went to some forgotten place. It went to some forgotten place that's hidden in infant space. That's all I know. The stanza number 4. The poet says, "Where did my childhood go?" मेरा बचपन कहाँ गया? अक्सर बुढ़ापे में जवानी याद आती है और जवानी में बचपन याद आता है। और आने वाला नया दौर अपने साथ पिछले दौर की परछाइयां भी साथ मिलकर चलता है। यहाँ पर यही हो रहा है, Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ गया? It went to some forgotten place. What is mean from forgotten place? बुला दिए गए स्थान। Like itself a forgotten place. Why? Because the time is running like a river. As you know, river only flows and flows, and their target is aim is the sea. In sea, he destroyed his individuality. एक नदी बहती रहती है। अंतिम मंजिल क्या होती है? सागर में जाके ही लॉस्ट हिज इंडिविजुअलिटी, और अपनी जो व्यक्तिगतता होती है वो वहां पर बिता देती है। गंगा गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, झेलम है, रावी है। तब तक ही है जब तक कि वो समुद्र में नहीं गिरे। समुद्र में गिरने के बाद गंगा चीख के नहीं कहती ये तो मैं गंगा हूँ, वो यमुना है। वहां सब क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। एज एग्जाम्पल, this whole world is the forgotten place. We born, we live, हम पैदा होते हैं, हम रहते हैं, चले जाते हैं। We are living in a hotel. This all world is a very big inn, very big hotel. Only we stay there for a few moments. This house, your house, everyone's house is a hotel. इन एक धर्मशाला है, एंड वी पास दैट ए फ्यू मोमेंट देयर, देन वी गो अवे फ्रॉम देयर। हम फिर वहां से क्या होते हैं? चले जाते हैं। जब हम लोग चले जाते हैं तो पीछे जहाँ रह के आए वो हमारे लिए क्या है? दैट इज द फॉरगॉटन प्लेस। उन्हें कहते हैं बुला दिया गया स्थान। तो कह रहा है इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। द पोएट रिमेंबर हिज चाइल्डहुड। He was saying himself that now his childhood is like a forgotten place, a place which we just forgot. एक ऐसा स्थान जिसे हमने क्या कर दिया है? भुला दिया है। The place which never can be returned, वही स्थान जो कभी नहीं आ सकता है। At this time is like a टैप रिकॉर्डर विथ नो रिवाइंड एंड नो फॉरवर्ड बटन। क्या है? टैप रिकॉर्डर की तरह है जिंदगी के समय में, जिसमें रिवाइंड की बटन भी नहीं है और फॉरवर्ड की बटन भी नहीं है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ये उसका बचपन है, शायद किसी बुला दिए स्थान की तरह हो गया है, या ऐसी जगह उसका बचपन चला गया है जिस जगह को हम भूल चुके हैं, अर्थात कि जो वापस कभी लौट के नहीं आएगा। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट स्पेस। तो क्या कह रहा है? बट कभी को पता है वेयर इज हिज चाइल्डहुड। वो कह रहा है कहाँ छिपा हुआ है उसका बचपन। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट स्पेस। इन्फेंट का मतलब शिशु, छोटा बच्चा। द पोएट सेज दैट हिज चाइल्डहुड is hidden in the infant space. If you want to see your childhood, you have to watch an infant, a baby. If you will see in his eyes,
वी विल गेट योर चाइल्ड इज देयर। आपको क्या लगता है, यदि आपको आपका बचपन देखना है तो यू कांट सी इन योर सेल्फ। अब तुम्हें तुम्हारा बचपन नजर नहीं आएगा। यदि तुम्हें बचपन देखना है तो किसी छोटे बच्चों की आंखों में देखना होगा। छोटे छोटे बच्चे जब कंचिया खेलते हैं, गंपा बीती खेलते हैं, जो आप नहीं कर पाती हो, आपको शर्म आती है, उनको जब वैसे करते हुए देखोगे, उनके अंदर आपको क्या आपका बचपन नजर आ जाएगा। और ऐसा होगा भी सही। आने वाले 10 सालों के बाद जब पीछे पलट कर ऐसे बच्चों को देखोगे छोटे छोटे खेल खेलते हुए जो कभी आप खेला करते थे, तो आप क्या कहोगे, यार इनको देख के बचपन की याद आ गई। अर्थात कि वेरी चाइल्ड चिल्ड्रन, बचपन का छुपा हुआ है इन इन्फेंट्स आईज, इन इन्फेंट्स फेस, उस शिशु के चेहरे में, जिसे देख के हमें अपना गुजरा जमाना क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई, इफ यू वांट टू सर्च योर चाइल्डहुड, यू हैव टू सर्च एवरी फेस ऑफ द इन्फेंट। आपको अपना बचपन तलाशना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, एक शिशु की आंखों में, उसके चेहरे में। दैट्स ऑल आई नो। और कभी कहता है कि मुझे पता है कि मेरा बचपन कहाँ गया है। पूरा इस स्टांजा को पूरा समग्र रूप से देखिए। इसमें हम क्या पाते हैं, इस चीज को समझ लेना थोड़ा। ये पूरी जिंदगी एक टाइम फ्रेम है। ये जिंदगी वन वे है, ध्यान रखना। व्हाट इज द वन वे? वन वे का मतलब सिर्फ जाने वाली गाड़ियां जा सकती है, आने वाली नहीं, मतलब एक तरफा मार्ग। जिंदगी वन वे है। कैसे? सिर्फ जा सकते हो, लौट के आने का कोई ऑप्शन नहीं है। अर्थात कि हम चल रहे हैं, बस निरंतर हम आगे जाएंगे, पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे वही आ सकता है जो मर जाता है। जब तक जिंदा हो आपको चलना है, समय को चलना है। Neither time will wait anyone, nor he will wait you. He will goes on and goes on. समय चलता रहेगा एंड आपको दो तरीके से उसके साथ चलना है, या तो मजबूरी में चलिए या उसके साथ बड़ी खुशी से चल लीजिए। चॉइस इज यूर एंड चॉइस इज चॉइस। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें पिछला वक्त याद आता है, वो हर पीढ़ी में आएगा। अभी आप जस्ट जवानी की दहलीज पे कदम रखने वाले हैं, तो अभी आपको बचपन याद आना है। जब 60-70 साल के हो जाओगे तब आपको आपकी जवानी याद आएगी, तब आपको आपका बचपन याद ही आएगा। हर अगला दौर पिछले दौर को गुनगुनाता है। हर अगला दौर पिछले दौर के बारे में काफी कुछ कहानियां सुना जाता है। ओवर एंड ऑल, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं सिर्फ ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है ना आपको। ये 2-3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। किताबें तो तुम लाया करो, किताबें हैं, किताबें खरीदी भी नहीं है, किताबें खरीदी भी नहीं है। छोड़ो, भीख मांगो तुम तो यार। हाँ देखिए, आइडेंटिफाई द स्टांजा दैट टेक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि इसमें 3 शब्द दे रखे हैं। इन 3 शब्दों के आधार पर कि वो उन शब्दों का मतलब स्टांजा में ढूंढिए। जैसे देखो 3 शब्द दे रखे हैं, इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म, हिपोक्रेसी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, अलग सोच। जब वो खुद सोचने लग जाए उसके लिए कौन सा स्टांजा है? स्टांजा नंबर 3, ऐसा, क्योंकि इसमें बिकॉज इज डेवलपिंग हिज ऑन माइंड। अगला है हिपोक्रेसी, आडंबर, पाखंड। कौन सा था? सेकंड वाला। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग इन एडल्ट्स। जो बालिग लोग होते हैं वो कहते हैं क्या, करते क्या, ये क्या है, पाखंडी है। तो ये जो हिपोक्रेसी स्टांजा नंबर 2। फिर है रैशनलिज्म। क्या हुआ रैशनलिज्म? उसका पहला स्टांजा। कौन सा स्टांजा? पहला स्टांजा, जिससे वो कहते हैं कि उम्र को देखने लगता है, 10 साल 11 साल ये। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पोएट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। देखिए, कविता के अनुसार बड़ा होने की प्रक्रिया में क्या क्या आता है। ये पूरा जो
पैसेज है। जब इफ ए चाइल्ड ग्रो, यदि एक बच्चा बड़ा होता है तो उस पूरे प्रोसेस में क्या आता है, लेट मी स्टार्ट। देखिए इसको अपन आपने पहला देखा होगा, पहला स्टांजा। पहले स्टांजा में क्या था, मैं इसे सिर्फ रफली आइडिया दे रहा हूं, एक्सप्लेन से आपको करना है, ठीक है ना। आप देखिए इसे, हाँ इस चीज को थोड़ा समझिए। नंबर 1, पहली चीज, जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, लेफ्ट द इनोसेंस। इसको उसकी जो निर्दोषता होती है वो क्या होता है, भोलापन होता है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। 10 साल की उम्र के पहले क्या होता है, वो 10 साल की उम्र के पहले वो क्या होता है, एक बच्चा मासूम होता है, भोला होता है। तो बड़े होने की प्रक्रिया में उसकी क्या होती है, एक तो इनोसेंसी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज हिपोक्रेसी। अभी जो शब्द आया था कौन सा था वो, Now he is a hypocrite. What is mean from hypocrite? बड़ा होता है तो क्या होता है, वो हिपोक्रेट हो जाता है। हिपोक्रेट मतलब पाखंडी हो जाता है। पाखंडी का मतलब ये होता है कि हम कहते क्या और करते क्या है। उसे क्या कहते हैं, कथनी और करनी में अंतर। तीसरा क्या होता है, डेवलप हिज ऑन माइंड। ही डेवलप इंडिविजुअलिटी, वो अपने आप में हो जाता है। पहले वो दूसरों के आधार पे सोचता था, परंतु अब क्या करता है, वो पहले वो अपने हिसाब से सोचता था, अपने परिवार वालों के हिसाब से सोचता था, अपने घर वालों के हिसाब से सोचता था, अपने पेरेंट्स के हिसाब से सोचता था। पर नाउ ही इज क्रिएटिंग हिज इंडिविजुअलिटी। वह क्या कर रहा है, अपनी वो इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर रहा है। उसके बाद देखिए नंबर 3, उसके बाद था नंबर 4, कौन सा था, हाँ अरे रिकॉर्डिंग चालू है, आवाज क्यों कर रही हो, मैं सही जा। उसके बाद अंत में क्या होता है, लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कहां पर, इन फॉरगॉटन प्लेस, अर्थात कि फॉरगॉटन प्लेस, जितनी भी भुला दी गई चीजें हैं, उसका जो बचपन है क्या होता है, ऐसी जगह पे जाके खत्म हो जाता है जैसे कि भुला दिए गए स्थान होते हैं, ठीक इसी प्रकार से। तो इसको क्या आपको जस्ट लाइक एक्सप्लेन करना है। इसको बिना एक्सप्लेन किए से आप क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हिंदी पढ़ते हैं।